अब तेरा क्या होगा कालिया। काफी हद तक कहानी सिमिलर है विद मेरा गांव मेरा देश। पूरे 1 करोड़ का ठीक है, बजट रखते हैं, बट इट went on to cost 3 crore। वो तो उस वक्त सोचा नहीं था। 3 करोड़ उस जमाने। फर्स्ट डे मिनर्वा हाउसफुल ही था। बिल्कुल, नॉट अ सीट। उसके बाद कभी भी उस वहां पे एक सीट खाली नहीं हुई 5 साल तक। 4 लाइन की कहानी थी और कहते हैं कि मनमोहन देसाई के पास वो कहानी थी। तो उसी पार्टी में शुरुआत हुई थी, सीता और गीता की सक्सेस पार्टी में शोले की शुरुआत हुई थी। बट यहाँ पर भी अगेन बहुत सारी कहानियां है, किस्से है। बिफोर वी गो टू द मिथ्स, 4 लाइन की कहानी थी और कहते हैं कि मनमोहन देसाई के पास वो कहानी थी। क्या हुआ था? ये बात भी सही है। नहीं, कहानी सलीम जावेद ने वो 4 लाइन की कहानी सुनाई थी, and it was with a producer who was making a film with Manmohan Desai. When it was time to launch the film, Manmohan Desai told him कि देखिए, ये मेरे टाइप की फिल्म नहीं है। डाकू एंड ऑल these things, मेरा तो वही लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट पी, वो तो मैं वो सारा नक्शा समझ सकता हूँ। ये मेरे मुझसे ये नहीं बनेगी, तो बेटर है कि अभी ये फैसला कर लें। उन्होंने मुझे सुना ली, नहीं, शायद प्रकाश मेहरा को सुनाई। ओके, या प्रकाश मेहरा also was not, he couldn't get at that time it was about an army officer. जी। And these two guys had been in training with the army, but they were very mischievous, and that's how he remembered. वो थोड़ा सा शिफ्ट किया और पुलिस की कहानी बना दी। Other than that, वो पूरी कहानी बनी। once we decided कि ये बनाएंगे, तो बहुत ही जल्द बन गया स्क्रिप्ट, जिसे कहते हैं। जावेद साहब ने मुझे सुनाया, पहले वी वर्कड ऑन द स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग। तो जावेद साहब एक दिन आए, उन्होंने मुझे गब्बर की एसेंस के लिए कहा कि हाउ डू यू सी दिस फिल्म? I said, I see a very mercurial temper. That's one thing I feel should be there. So in the setting was a UP setting, because that's where the dacoit land was. Chambal and all. Yeah. तो उन्होंने मुझे ये सुनाया, first scene, introduction. He asked me and said, how do you see? Right? Give him that moment of what I, in my head, was running. So okay, came back after a day and said, this is ये जरा सुन लीजिए। तो उन्होंने पहला सीन सुनाया गब्बर का, इंट्रोडक्शन वाला। I said, you grabbed it, you got it, that's what I want. So he felt it right, he brought it in. Anyway, together they did a great job, and Javed Saab caught the essence of the lines and characters. Basanti's yap beautifully. मैं बोल नहीं पाया, जितनी तेज हेमा जी बोल गई,
मैं नहीं बोल पाया। इस बार आप नहीं सिखा पाए। नहीं, she heard it and in her own way she went and it was damn good. So I was a little worried about that, you know. Because basically she's from the south, speaking a language from the north, Correct. and so fast. But I think he has a photographic memory too. Amitabh Bachchan has it, Yeah, she has it. of course. Once she read something, it stuck to her, and she was able to. क्या बात। बट कास्टिंग अगेन यहाँ भी वही वापस म्यूजिकल चेयर्स। ऑफ कोर्स वी ऑल नो डैनी साहब वाज साइन फॉर गब्बर सिंह के रोल के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी आज तक कहते हैं कि पहले मैं करने वाला था वो रोल। ऑफ कोर्स बट था, साइन किया था उनको आपने? नहीं, शत्रु जी को बात सोचा तो जरूर था, ओके। और बात भी की थी, but somehow I had a big problem in my head कि I have already got धर्म जी, हेमा जी, संजीव कुमार, and now I'm adding Amitabh Bachchan. He was not yet a big star. जी He had started, but some of his films didn't work, so he was. I mean, how does one handle so many stars? करेक्ट। Let me not. And Shatrughan Sinha by then had established himself as a big star. He was playing a negative role, but डायलॉग वाले स्टार। so I said it will become difficult to handle on the set. Then I don't want to be stuck with egos and things like that. I have the kind of cast. I'm okay with these 3 stars are enough, and the others should nicely. Jayaji, I couldn't think of a better person who would express so much with her eyes and facial, and so Amit ji, of course, he had played Anand and played a lively role in बॉम्बे टू गोवा। Bombay to Goa. So I said, here's a complete artist also. So with these people, I'll be able to handle things. And finally, it was Danny could not make it, so Amjad came into the picture. I'd seen Amjad on stage. He worked with my sister in a play. So that was in my mind when Sunil Javed suggested it. It rang a bell. So that's how it happened. बट जब कहानी सर आपने सुनी, आज कई लोग जो होते हैं ना जो लिखते हैं कि अरे काफी हद तक कहानी सिमिलर है विद मेरा गांव मेरा देश, उसमें भी एक आर्मी जब मैन था। डाकुओं की होगी तो लाइन तो कहीं ना कहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स यस, बट गब्बर सिंह नहीं, नॉट लाइक नो, यू नेवर फेल्ट दैट? जब्बार था ना वो, क्या था? Okay. जब्बर था। जब्बर सिंह है। या समथिंग। मे बी शायद आज लोग सिमिलैरिटीज फाइंड कर रहे हैं कि भाई वहां पे एक आर्मी वाला बंदा था, अगेन यहाँ पे ठाकुर है, वो भी धर्म जी, वहां भी चोर, यहाँ भी चोर, उस हिसाब से मे बी। See, coincidental some things do happen. तो बट नॉर्थ का, चंबल का वही रीजन है, तो सिमिलर नेम्स होना कोई। The reason I'm talking about is क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर आप लोगों ने बनाई। मैं अक्सर सोचता हूं कि देयर मस्ट हैव बीन मोमेंट्स जब आपको लगता होगा कि क्या हम सही जा रहे हैं। 3 साल लग गए थे फिल्म को बनने में, 3 years या 2.5 years। 3 करोड़ की फिल्म बनी थी। लोग उस वक्त पे 40-50 लाख में बिगेस्ट फिल्म बनाते थे, आप लोग इतनी बड़ी फिल्म बना रहे थे। आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो एक रात ऐसा हुआ रहेगा कि क्या मैं सच कर रहा हूं, एंड व्हाट केप्ट यू गोइंग? देखिए, पहले तो सीता और गीता बनी थी 50 लाख 40 लाख में, और बिकी थी 50 में जी। तो हमने सोचा इसके लिए एक
100 crores का बजट है. हम्म, I mean 100 lakhs, so पूरे 1 crore का ठीक है. बजट रखते हैं. But it went on to cost 3 crore. वो तो उस वक्त सोचा नहीं था. 3 करोड़ उस जमाने. But we started thinking that we'll give it a crore. अब वो every scene, everything took time, and I wouldn't give up. कि जो चाहिए वो चाहिए, जैसे चाहिए. It had to be done. So I wanted to make this film without compromise. That's how I'd spoken to the artist. I'm sorry that I'll be troubling you, but this is the way it should be. They all felt the passion, and they all felt the energy, and they all said, yes, we are with you. Go ahead. So it's as much to their credit that they took this on as, and of course, fine script by Salim Javed and Pancham and Anand Bakshi's fabulous music. Not only the songs, The background BGM, score, yeah, oh my god, out of this world. out of this world. There's something very special with it. तो म्यूजिक की बात करते हैं, बट सीन्स अगेन इस फिल्म में भी कुछ ऐसे सीन्स है जो दिल को दहला देते हैं. And सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वो व्हेन ठाकुर रीचेस हिज हाउस और जो पूरा मैसेकर हुआ है, और जो लास्ट में मास्टर अलंकार की जो चद्दर है वो हिलती नहीं है. वो शॉट सर आज तक ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ होगा, इतना क्या था कि इट जस्ट यू डिड नॉट शो दैट सीन. इतना पावरफुल, आई थिंक वन ऑफ इंडियन सिनेमाज बेस्ट सीन है वो. देखिए, some things like this happen. You don't plan, it works out in such a way. There was no such thing as this kind of weather for that scene. It started in broad daylight, sunny, shot for 2 days, and the clouds came. तो बैठे रहे, एक दिन बैठे, दूसरे दिन बैठे. At the end of the second day, I asked the cameraman, what about if we shoot it in this light? The clouds and everything. Then it started growing in my. And he said, yes, it will look nice. But what happens if the sun comes out? And that's true as well. But by then I got so involved with that eerie atmosphere, and it was like a forewarning of doom. कि कुछ अजीब सा होने वाला है. And I just felt there is no other way to shoot this but like this. And absolutely we shot for 2 days in that weather, everything back. अब धूप निकल आई. क्या when things go right, it's everything is right. No, धूप निकल अच्छा आई. थर्ड डे और बाकी था शूट. नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन की शूटिंग की थी. ओ फिर 2 दिन की शूटिंग came up to date with. So we had 2 versions in hand. अच्छा. Partly shot the scene, the sun and the darkness, ओ the gloom. ग्लूम वन. हाँ. तो क्या करें? Sunlight आई. So he said, should we carry on shooting? Every 2 days we'll keep shooting. वापस बजट ऐसे ही बढ़ रहा है. नहीं, I said now we shoot it only like this, because everything about it will work differently. That's how the wind, and we got the propeller to build the wind, and
all those things happened. पास में आर्मी का था तो उनसे मंगवा लिया. So sometimes scenes are written and sometimes the atmosphere around you enhances it to a different level. True. So I thought taking advantage of both, not losing the essence of the scene and presenting it in a light which would be even more effective. So that's how that sequence was. Wow, but really, what a scene. So, फिल्म में एज अ शोले के डाई हार्ड फैंस ना बहुत सारे डिलीटेड सीन्स की आज मौका मिला है तो मैं पूछने वाला हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो ऑफकोर्स वो एंडिंग की तो है, बट वो सॉन्ग चांद सा कोई चेहरा, बहुत मिथ्स है. कोई कहता है कि वो गब्बर सिंह के भागने के वक्त शूट होने वाला था, कोई कहता है कि वो एक कवाली था जहाँ पे धर्म जी और अमित जी कहीं पहुंचते तो वहां गाते थे. क्या था वो सॉन्ग के पीछे की कहानी? It was a kawali. जी. It was a kawali, but no. Just it was supposed because we had only 4 or 5 songs, so सबने कहा कि एक और गाना हो तो बेटर है. But I just felt that by the time we were through with most of the work, so now adding a song is not going to, as it is 3.5 घंटे की फिल्म, 4 घंटे की फिल्म बन गई. I said it's not worth it and dropped it. कुछ भी शूट नहीं हुआ था? नहीं. अच्छा, 2 फोटोज हम देखते हैं, एक है धर्म जी और अमित जी एक ढाबे पे बैठ के कुछ खा रहे हैं. That was just a scene. वो सीन भी नहीं हुआ था यूज. क्या था वो सीन सर? वो क्या था? It's just one of the scenes in the beginning, establishing there. Conning people वाला टाइप. फिर that song set it up completely. There was no need for these. Okay. एक और फोटो था जेल के अंदर, धर्म जी वो रॉक्स लेके खड़े और अमित जी उनके साथ है हाफ पैंट. हाँ, that is I think हाँ वो भी किया था हमने, but then again वही editing के वजह से what happens is that संजीव कुमार का जो आदमी वो आता है जी. he gets that information. So by the time we did the final edit, this वो उनसे पूछता है कि ये 2 आदमी, और हम उनको ले जाते हैं. So it's understood he came looking for them. Okay. He goes to the jail. वहाँ से उनको ले आता है. So संजीव कुमार is standing outside the jail and waiting for them. वाओ, क्या है सर, ये सब सीन्स काश हमें देखने मिलते. बट लकीली वी आर गोइंग टू विटनेस द 4K रिस्टोर्ड वर्जन विद द ओरिजिनल एंडिंग व्हिच यू हैड शॉट, जहाँ पे ठाकुर इवेंचुअली, आई हैव सीन दैट वर्जन, मेरे पास वो डीवीडी है थैंक्स टू अ फ्रेंड ऑफ माइन आउट हियर. और जो उसके एंड में होता है, यू नो, व्हेन स्पेशली व्हेन ही गोज एंड क्राइज, कहीं ना कहीं वो लगा था कि दैट एंड्स द परफेक्ट, यू नो, कैरेक्टर ऑफ ठाकुर, क्योंकि पूरे पिक्चर में ही इज जस्ट इमोशनलेस, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, और दैट्स व्हेन ही क्राइज एंड धर्म जी कम्स एंड हग्स हिम. वो सीन, आई मीन, काफी टफ हुआ होगा फॉर यू टू लीव दैट सीन सर. You will see it now. Yeah, we will, of course, we all will see it. But I want to know, जब वो कट कर दिया था, आपने रीशूट किया था, काफी अंदर से एज अ डायरेक्टर काफी गुस्सा भी आया होगा, क्योंकि किलिंग ऑफ गब्बर से भी ज्यादा दिस सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सही है, उस वक्त हो गया, एंड बिकॉज इट वाज द इमरजेंसी, बियॉन्ड अ पॉइंट वी कुड नॉट फाइट, so one had to accept it. Salim Javed and Amit ji, they all said, अब आप जिद मत कीजिए, छोड़ दीजिए, देखेंगे बाद में. So we had to, it's like they said, you're giving a little and getting a lot. जी. So don't waste the opportunity now, let it happen. और फिर 50 years later we're going to be seeing it. Yes, we are going to see that scene. But अमित जी ने मुझसे कहा था कि जो प्रीमियर हुआ था
उसमें हमने 70 वर्जन नहीं देखा था बिकॉज वो प्रिंट आई नहीं थी, और आपने रात को उनको 2 बजे फोन किया था कि कम 70 वर्जन हैज कम, एंड देन ही केम बैक नहीं अगेन। नहीं ही सेड विनोद नहीं, खन्ना, अच्छा घर पे बोला नहीं कहीं तो बोले कि हम गए वापस, हाँ। विनोद खन्ना मैं थे, हमने फिल्म देखी थी। then when I called him, I said the print has come. जी So he came rushing back to the theatre, and we started at 3 in the morning, जी। finished at 6 in the morning. क्या रिएक्शन था सर, क्या माहौल था वो 70 दैट स्टीरियोफोनिक साउंड, वो कॉइन का सिक्का, वो आवाज यहाँ से बुलेट जा रही है। आई वांट टू नो दैट एक्सपीरियंस सर, हमने वो नहीं देखा है, मिनरवा में नहीं था, आपसे जानना है सर। मिनरवा में नहीं था मतलब हम नहीं देख पाए ना, हाँ आज मिनरवा इज नॉट देयर, सो but आज technology has reached a point where in the theaters today you can get it, you will feel it. I'm sure the way the stereophonic sound आजकल वो विस्टा विजन क्या बोलते हैं, हाँ एटमॉस के साथ there are several speakers and there are you get the feel of the entire thing. I'm sure the effect will be there. ओके। एक और जो मिथ था कि वो रिलीज को लेकर, विच आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल, मैंने बमन ईरानी से बात की है, बमन ने बताया था कि आई वाज सेलिंग पॉपकॉर्न या जो भी उनका शॉप था उसके सामने, बोलता है कि फर्स्ट डे से पिक्चर हाउसफुल थी। ये सिर्फ मिथ्स है कि पिक्चर वाज नॉट अ हिट एंड एवरीथिंग। समबडी टोल्ड मी कि कुछ सिनेमा हॉल्स में कॉमिकल सीन्स कट कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ लेंथ, और वहां पे फिल्म का रिएक्शन थोड़ा स्लो था। मिनरवा वाज डे 1 से हिट। आपसे आज जानना चाहते हैं सर क्या था? ये मेरे कुछ दोस्त थे जो हमेशा मुझे चिढ़ाते कि शोले हिट नहीं थी। They, yes, that's what the Trade papers. Yeah. That is not the people. Yes, it puts you a little on alert. What are they saying? We had a meeting also. Said ऐसी बातें हैं और क्यों अमिताभ बच्चन को मार दिया। हाँ ये भी था, करेक्ट। लेकिन then we met at Amitji's house. We met and we spoke about it. We discussed it and decided to stay with the for a little while longer and then we'll see. क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर आप उनको मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। I said, by the time I had regained my belief in the film, and I said, क्यों अभी तो दीवार हाँ थी, सेम तो 75। उसमें he did not die. The emotion was strong and they felt for him. यहाँ भी वही होगा और they feel for him. That means it's good. It's good for the film. A friend dies and the other friend takes revenge. True. How can we change that? It's not possible to think of changing it. So we left it as it was, and the rest is history. बट वही अगेन आई वांट टू नो, फर्स्ट डे मिनरवा हाउसफुल ही था? बिल्कुल, not a seat. उसके बाद कभी भी उस वहां पे एक सीट खाली नहीं हुई 5 साल तक। या सो ऑन रिकॉर्ड दिस इज अ फैक्ट दैट इट वाज हिट फ्रॉम डे 1। तो अब ये जो भी बोल रहे हैं ना कि नहीं थी, प्लीज यू हियरिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम सर्स माउथ। आई गॉट समथिंग फ्रॉम अमित जी, he specially sent something for you for today's occasion. Okay. A friend of mine, Sanjay, has got this. Yeah. Very nice. Thank you, Amit ji. Just show it over here. बता दीजिए। शोले चेंज सो मच, बट म्यूजिक अगेन यू नो, जो उसके फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डायलॉग्स की, बैकग्राउंड स्कोर की एक एलपी, 2 एलपी रिकॉर्ड्स निकले थे, एंड इट हैड चेंज
तो मतलब नंबर 1 पे होके चुका था, सारे पिक्चरों के साउंड ट्रैक पीछे रह गए थे, बट पीपल आर बाइंग दिस एट द हाईएस्ट सेल्स. Yes, I think the dialogues, and particularly Gabbar's lines, because of the style in which they were spoken, and it was something very unique for audiences. And उनको इतने पसंद आए. कॉरिडोर मैंने सोचा क्योंकि म्यूजिक इन द बिगिनिंग इतना पॉपुलर नहीं जी. हुआ, तो वी सैट डाउन एंड डिसाइडेड क्या डिस्कसिंग क्या कर सकते हैं टू बूस्ट इट. सो एक सजेशन आई कि ये लाइंस इतनी पसंद आ रही हैं लोगों को, क्यों ना डायलॉग का एक बनाया जाए. दैट्स हाउ द dialogue record was decided on, and the reaction with the people was tremendous. They loved hearing it, and I think in some way it helped people come back to the theatre. So they would hear the lines in the theatre, go out again, record पे सुनते थे, अच्छा. और सुनते थे तो उनको लगता था कि यार जाके फिल्म में देखें, वापस देखे और वापस बोले. वापस. तो I think it had a mesmerizing effect. So that was wonderful to see that a whole new trend had been set. And I think it was tried by other films later, but it didn't work. या कभी ऐसा Because वो फ्लेवर जो था वो आ नहीं सका. वो उसकी वजह से हुआ ये सब. तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वक्त का तकाजा है. लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क फेवरेट सीन ऑफ शोले. आई नो इट्स वेरी टफ, एंड फेवरेट डायलॉग ऑफ योर्स. अब तेरा क्या होगा कर लिया. एक और बात सर, एक और बात प्लीज, इन दैट योर. हाँ. अब तेरा क्या होगा कर लिया. वाह. तो सर आप यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं पार्ट 2 फ्रॉम शान से लेकर No. बुनियाद से लेकर बहुत सारी बातें हैं. तो वी विल हैव इट वन मोर टाइम. Yep. Okay, sir. Thank you so much for being with us, and सबसे ज़्यादा तो thank you for giving us all these wonderful films and of course, Sholay. Thank you so much.